Very good morning everyone. Today in this video we will try to learn about the serotonin, their receptor and their antagonist. So first of all, how many types of serotonin receptors we have? So we have till date 5-HT1 to 5-HT7 receptors, which are named as 5-HT1, 2, 3, 4, 5 and 7 like this. The thing which you have to remember is this, the location of these receptors. The 5-HT1 receptor is the presynaptic, the only receptor of the serotonin which is presynaptic is 5-HT1. 5-HT1 again can be divided into 1A, 1B, 1D, that we will see later on. And rest all other are the postsynaptic receptors. Rest all other are the postsynaptic receptors. Only 5-HT1 is the presynaptic. So first golden point is only 5-HT1 is presynaptic. So this you have to remember in the serotonin. Only 5-HT1 is the only receptor which is presynaptic. Rest all others are postsynaptic. So this serotonin or 5-hydroxytryptamine is known as the autocoids. Why it is known as autocoids? Autocoids means it's the local hormone. It is the local hormone. This means that it is produced locally and it acts locally. In the autocoids we have one is the amine autocoids, one we have the lipid autocoids, and in the amine autocoids we have the histamine and the serotonin. So today we are discussing about the serotonin, which is also known as 5-hydroxytryptamine. In the end you have noticed that's written amine. So it's an amine autocoid. It's not like it's a hormone, but it's a local hormone. It is produced also locally and acting also locally. This 5-hydroxytryptamine was discovered by Ernst Spammer in the 1930s. So this is for the his picture I have included here because nowadays we are getting the picture based question also. So Ernst Spammer has discovered the 5-hydroxytryptamine. Where is 5-hydroxytryptamine located? 5-hydroxytryptamine is a local hormone. It's a local autocoid. So it is not located everywhere. It is located in some part of our body. So that is important, and where it is located is the gut mucosa, and in that enterochromaffin cells of the gut mucosa. It's important clinically also because here we can discuss one syndrome, one disease because of this serotonin, and that is called carcinoid tumor. This carcinoid tumor is the disease in which there is excess of enterochromaffin cells in the gut mucosa, which is leading to the formation of more of the 5-hydroxytryptamine or more of the serotonin, causing the further disease. The other 90% of the serotonin is present here. Some other places where the serotonins are present, rest other 10% are in the platelets and in some part of the CNS. Not only in our body, the serotonin is also present in some of the fruits and vegetables also, tomato, banana, pineapple, pear. The important thing is this one, insect sting. Agar scorpion katega, wasp katega, then also there is a release of serotonin. So you have to remember, so because management will be done accordingly to that. अगर पता है कि स्कॉर्पियन स्टिंग की वजह से सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, then we will manage like that one. Okay? So coming to the next, how the serotonin is produced. So serotonin is produced in the body from the amino acid, that is tryptophan. Tryptophan is the initial amino acid converted to 5-hydroxytryptophan, then converted to serotonin. Serotonin is metabolized by the same like the catecholamine was metabolized, MAO, by the oxidation, monoamine oxidase, MAO, and specifically MAO-A. You can say MAO-A. This 5-hydroxyindole acetic acid 5-HIAA, which is produced, this is very important clinically, in clinical perspective, because this 5-hydroxyindole acetic acid with this metabolite comes in the urine, and we can measure this metabolite at this
and thus we can diagnose the carcinoid syndrome patient. Because in the carcinoid syndrome there was excess of serotonin, and serotonin level we cannot measure. We can measure the 5-hydroxyindole acetic acid level in the urine, and that will be helpful in the diagnosis of carcinoid syndrome. This is part is very important because we have to remember the receptors, and we have to remember the location, and we have to remember the agonist or antagonist what we are using. One thing I want to discuss here. Basically, there are only 4 types of serotonin receptor which are used clinically. Only 4 types, and I will be discussing in the one slide 2 types, and in the second slide the other 2 types. The reason is somewhat, I will tell you the reason, but it's very important. So 1 and 4, the extreme part we will discuss in the first slide, and the 2 and 3, this 2 part we will discuss in the another slide. The reason you will अभी आप पता चल जाएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं. इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत भूलते हैं. 5-HT1 को 1A, 1B, 1C, 1D ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो फर्दर सब क्लासिफिकेशन करने के लिए. 1C अब नहीं है. 1C जो चला गया है वो 2 में चला गया है, इसलिए मेरे पास 1A, 1B, 1D है. 5-HT1A अगर देखेंगे, 5-HT1 रिसेप्टर वाज प्रेजेंट only 5-HT1 presynaptic, and from the initial lecture, initial video you have seen, जो presynaptic receptors होते हैं, जो वो auto receptors जो होते हैं वो inhibitory होते हैं, so it will cause the inhibition of adrenergic cycles. अब presynaptic होते हैं और ये cortex में, raphe nuclei, hippocampus में, और जब इनिबिट कर रहे हैं तो वी कैन यूज इन एंजाइटी कंडीशन में, एंजाइटी कम करने कंडीशन में बुस्पारा इसापिनॉल जेनोन. क्या एक निमोनिक इसका दे देते हैं, कैसे याद करना है. तो निमोनिक ए से अगर आप देखोगे तो याद हो जाएगा. ए का मतलब होता है, ए का अगर आप पूरा लिखोगे तो ए इज फॉर A1 रिसेप्टर. 1A रिसेप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट 5-HT1A, एंड अगेन ए इज फॉर एगोनिस्ट. एगोनिस्ट है क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन यही होता है कि एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है. बुस्पारॉन, इजापिरॉन ये एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है. एंटी एंजाइटी ड्रग जो है 5-HT1 का एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट, लेकिन नहीं, ये एगोनिस्ट है क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई एगोनिस्ट. ड्रग का नाम ए के बाद क्या आता है? डी. बुस्पारॉन इज अ ड्रग व्हिच इज दिस 5-HT1A एगोनिस्ट. एक और 5-HT1 रिसेप्टर था 5-HT1B, 1D. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसेप्टर. अब एग्जाम्स में हम ये भूल जाते हैं फिर से कि ये एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है. रिमेंबर ये जो स्लाइड हम बता रहे हैं इसमें सिर्फ एगोनिस्ट है, इसमें एंटागोनिस्ट क्लिनिकली यूज नहीं है, सिर्फ एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं. और 5-HT1B, 1D का फिर से वही बात है क्योंकि वो प्रीसिनैप्टिक है तो इनिबिट करेगा. इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 1B, 1D जो होता है वो क्रेनियल ब्लड वेसल्स में होता है. क्रेनियल ब्लड वेसल्स में होने के कारण इसको हम एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में यूज कर सकते हैं और एगोनिस्ट यूज करते हैं सुमाट्रिप्टन, नैपनाट्रिप्टन. The other things related to this triptans we will discuss in the migraine lecture, migraine video. Today I am confining this only to the serotonin. So just remember कि 5-HT1B, 1D का agonist है triptans, not the antagonist. 1 and 4 I will discuss in the one slide, and 2 and 3 I will discuss in the next slide. 1 हो गया, 1 के बाद क्या आएगा? अब 4. 5-HT4 का रिसेप्टर जो होता है, 5-HT4 तो पोस्ट सिनैप्टिक है तो स्टिमुलेट करता है, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये जीआई ट्रैक्ट में होता है. जब स्टिमुलेशन होता है तो उसके कारण गैस्ट्रिक की मोटिलिटी बढ़ती है, और मोटिलिटी बढ़ती है तो जीईआरडी में काम आ जाएगा. गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज वी कैन यूज, एंड द ड्रग्स इन दैट आर सिजाप्राइड, मोजाप्राइड, रिजाप्राइड, टेगासेलॉल, metoclopramide. Metoclopramide is acting on 5-HT4 also and acting on dopamine also. ठीक है. तो सेलेक्टिव एगोनिस्ट सारे हमने डिस्कस कर लिए. 5-HT1 और 5-HT4 का हमें एगोनिस्ट यूज करना है, दैट्स व्हाई इन द वन स्लाइड. एंड दूसरी स्लाइड की बात करेंगे तो ये एगोनिस्ट हो गया. दूसरी स्लाइड की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे 5-HT2 और 5-HT3. 5-HT2 को पहले डी रिसेप्टर कहा जाता था, इसीलिए ब्रैकेट में डी रिसेप्टर लिख दिया है मैंने. और 5-HT2 और 5-HT3 ये भी पोस्ट सिनैप्टिक होंगे. इनका अब एंटागोनिस्ट ज्यादा यूजफुल है. पोस्ट सिनैप्टिक है, एंटागोनिस्ट है. वैसोकंस्ट्रिक्शन ना हो गए स्मूथ मसल से
ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, वैसोकंस्ट्रिक्शन ना होके वैसोडायलेटेशन हो जाएगा तो वी कैन यूज एंटी हाइपरटेंसिव बट नॉट वेरी मच वेरी इफेक्टिव, नॉट वेरी गुड ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव और भी अच्छी हमारे पास है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंटीसाइकोटिक्स हैं हम भूल जाते हैं कि एंटीसाइकोटिक्स किस ग्रुप की ड्रग है। एंटीसाइकोटिक्स को वो आपको याद रखना है कि पहले तो एंटागोनिस्ट है। ये एंटागोनिस्ट किसका है? 5-HT2A2C का एंटागोनिस्ट है। तो इट्स अ एंटागोनिस्ट नॉट द एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ऑफ 5-HT2A2C। 5-HT3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों ने आप लोगों ने यूज भी की होगी गोली दवा जो कि वॉमिटिंग के लिए यूज होती है। तो 5-HT3 रिसेप्टर को पहले M रिसेप्टर कहा जाते थे और ये लाइगेट गेटेड चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, उनके पे एक्ट करती है और ये भी पोस्ट सिनैप्टिक होगा और जीआई ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होता है, इसलिए एंटी एमेटिक की तरह ऑन्डेंसेट्रॉन रेडिसेट्रॉन। तो हमारा ये क्या हो गया? 1 and 4 we are using the agonist drug, 2 and 3 we are using the antagonist drug. तो प्लीज रिमेंबर दिस वन बिकॉज एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी एगोनिस्ट ग्रुप की है, कौन सी एंटागोनिस्ट है, कौन सी ड्रग एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट सेरोटोनिन से रिलेटेड। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन मैं दे देता हूँ, क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू द एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। तो ये क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो जाएगा या लिख लोगे या क्लासिफिकेशन तो ठीक है। एगोनिस्ट में 5HT, एगोनिस्ट में कौन से 1 and 4। तो 5HT 1A, 1 में 1A 1B 1D था और 1A में कौन सी थी? 1A में एंजाइटी, A फॉर एंजाइटी, A फॉर और B फॉर बुस्पारोल एगोनिस्ट बुस्पारोल। और 1B 1D किसमें था? माइग्रेन में, माइग्रेन में था 1B 1D ट्रिप्टन्स एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन्स। एक और रह गया एगोनिस्ट में एंड क्या रह गया? 1 के बाद लास्ट में 4 था, 4 रह गया। 5HT4 का एगोनिस्ट, 5HT4 का एगोनिस्ट कहाँ पे? और फिर वो जीआई में मोटिलिटी जो बढ़ा रहा था, मोजाप्राइड, सिजाप्राइड, हेक्साप्राइड, टेगासिलॉल, मेटोप्रोपोलाइट यूजफुल इन द जीआई। एंटागोनिस्ट की बात करें, एंटागोनिस्ट कौन से? 2 ही थे, 1 और 4 तो हो गया, 2 and 3। 5HT2A2C का एंटागोनिस्ट कहाँ था? एंजाइटी में, सॉरी एंटीसाइकोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स में क्लोजापिन, रिस्पेरिडोल। 5HT2A का 2C का एंटागोनिस्ट। एंटीहाइपरटेंसिव कीटांसेरिन एंड डिटांसेरिन नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली एंटीहाइपरटेंसिव ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs आर यूज्ड। सेकंड एंटागोनिस्ट 5HT3 और बहुत कॉमनली यूज जो होती है वो किसमें? एंटीएमेटिक में, ऑन्डेंसेट्रॉन, रेनिसेट्रॉन, कीमोथेरेपी यूज ओनली। So this was the classification what I was trying to make you learn because ये important classification है according to हम ड्रग भी लिखती है, उसका एक्शन भी लिखती है, किस रिसेप्टर पे काम करेगी, तो ये समझना बहुत जरूरी है सेरोटोनिन में। कुछ ड्रग्स होती है नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स होती है सेरोटोनिन में। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये कहने का मतलब है कि वो सेरोटोनिन रिसेप्टर पे भी काम कर रही है और कुछ और रिसेप्टर पे भी काम कर रही है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ड्रग है उसका नाम है एल्गट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एल्गट से पॉइजनिंग होती है, जिसे कहते हैं एल्गोटॉक्सिन। एल्गट की पॉइजनिंग कैसे होती है? एल्गट एक फंगस है, फंगस है क्लेविसेट्स पुरपुरा, और जो कि जब फार्मर्स ग्रो करते हैं राई एंड मिलेट उनमें ये ग्रो करने लग जाती है फंगस। जब ये फंगस, यही फंगस हम लोग जब खा लेंगे, जब हम लोग के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर आ जाएगी, देन इट विल कॉज द इन्फेक्शन, जिसे कहते हैं ये इस टाइप का इन्फेक्ट। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये पिक्चर लगाए हैं कि ऐसी पिक्चर देख के पूछते हैं कि व्हाट इज द डायग्नोसिस और व्हाट हाउ विल यू ट्रीट दिस। दिस इज बिकॉज ऑफ द एल्गट पॉइजनिंग, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये गैंग्रीन है, काला हो गया है द टोज एंड द पाम्स, तो ये गैंग्रीन है बिकॉज ऑफ द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्योंकि एल्गट जो होता है एल्गोटिज्म करता है, और एल्गोटिज्म जो होता है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो जो पेरिफेरी की कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो उसमें सप्लाई नहीं मिलेगी तो काला पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड द गैंग्रीन। तो इसका मतलब ये जो एल्गट होगा सेरोटोनिन पे तो काम कर रहा है, अल्फा पे भी काम करता होगा, तभी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है। एल्गट 3 रिसेप्टर पे काम करता है, सेरोटोनिन, डोपामीन और अल्फा। सेरोटोनिन अल्फा पे तो काम करता ही है, डोपामीन में सिर्फ एक ही एल्गट है जो कि डोपामीन में काम करता है। तो एल्गट को 2 में डिवाइड किया गया, अमाइनो एसिड एंड अमीन अल्कलॉइड्स। अमाइनो एसिड में एल्गोटामीन, डायहाइड्रोएल्गोटामीन और ब्रोमोक्रिप्टिन, ये 3 ड्रग आती हैं
ब्रोमोक्रिप्टीन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ब्रोमोक्रिप्टीन भूल जाता है कि ये एल्गट का डेरिवेटिव है। ब्रोमोक्रिप्टीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्गट और ब्रोमोक्रिप्टीन डोपामीन का एगोनिस्ट है, ये याद रहता है, लेकिन ब्रोमोक्रिप्टीन एल्गट का डेरिवेटिव है, ये थोड़ा याद नहीं होता था। ब्रोमोक्रिप्टीन सिर्फ डोपामीन का एगोनिस्ट है, ये याद रखना पड़ेगा। और एल्गट डेरिवेटिव कौन से है? मिथाइल सल्फाइड, एर्गोमेट्रिन। ठीक है, ये देख रहे हो आप, पार्शियल एगोनिस्ट है ब्लड वेसल, वैसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा है, तो सबसे ज्यादा एल्गटिज्म किसकी वजह से होगा? एर्गोटामीन की वजह से होगा। एर्गोटामीन की वजह से सबसे ज्यादा ब्लड वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा हाई रिस्क या फिर पॉइजनिंग जो कह सकते हो वो बिकॉज ऑफ एर्गोटामीन की वजह से ही होगी। ठीक है, एक किस तरह से अब ये है कि एल्गट के कौन कौन सी यूजेस है, तो कई सारे यूजेस है एल्गट के, उसका भी एक निमोनिक बनाया है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी आपने सुना होगा जनरल फार्माकोलॉजी में, साइक्लिक एएमपी। ठीक, साइक्लिक एएमपी को सी से हम याद कर सकते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम क्यों? क्योंकि ये सेरोटोनिन को ब्लॉक कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल इन कार्सिनोइड सिंड्रोम, और स्पेसिफिकली मिथाइल सल्फाइड ही यूज की जाती है। एक्रोमेगाली क्यों? एक्रोमेगाली क्यों? क्योंकि एक हमारा ड्रग थी जो कि नाम था जिसका ब्रोमोक्रिप्टीन। ब्रोमोक्रिप्टीन क्या थी? डोपामीन का एगोनिस्ट। ब्रोमोक्रिप्टीन वाज डोपामीन एगोनिस्ट, और डोपामीन जो होता है वो इनहिबिटरी हार्मोन होता है। डोपामीन जो होता है इनहिबिटरी हार्मोन होता है, वो इनहिबिट करता है जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है। जब आप एंडोक्राइन वाला वीडियो देखेंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा कि ब्रोमोक्रिप्टीन कैसे काम कर रहा है। ब्रोमोक्रिप्टीन इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशंस को, ग्रोथ हार्मोन का कम हो जाएगा तो एक्रोमेगाली भी ठीक हो जाएगी। माइग्रेन में भी यूज कर सकते हैं एर्गोटामीन और डाइहाइड्रोएर्गोटामीन, क्योंकि क्या कर रहा था? वैसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा था, वैसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा था, इसीलिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट भी होगा, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। मिथाइल सल्फाइड को प्रोफाइलैक्सिस में यूज कर सकते हैं माइग्रेन की, लेकिन बट नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ड्रग ऑफ चॉइस कुछ और है, जब माइग्रेन का वीडियो देखेंगे तब उसको समझेंगे कि माइग्रेन में क्या क्या है। पीपीएच में, पोस्टपार्टम हेमोरेज में हेमोरेज हो रहा है, अगर उसको ट्रीट करना है तो हमें यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसी ड्रग जो यूट्रस पे ही काम करती हो और वो एर्गोमेट्रिन है। एर्गोमेट्रिन मसल्स, एर्गोमेट्रिन मेट्रिन मतलब मसल्स, और यूट्रस की मसल्स पे काम करती है एर्गोमेट्रिन, दैट्स व्हाई मोर एफिशिएंट एर्गोमेट्रिन है, एर्गोटामीन नहीं है। एक और पीस है पार्किंसन डिजीज है। ब्रोमोक्रिप्टीन क्या था? ब्रोमोक्रिप्टीन वाज अ डोपामीन एगोनिस्ट, तो इसीलिए पार्किंसन में भी तो डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है, तो पार्किंसन में दे सकते हैं। तो साइक्लिक एएमपी 3 की है, पार्किंसन और एक प्रोलैक्टिनिमिया। हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया क्यों? हाइपरप्रोलैक्टिन, वही बात आ गई, डोपामीन इज इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी है तो प्रोलैक्टिन लेवल को कम कर देगा, दस रिड्यूसेस द प्रोलैक्टिन रिलीज, प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम कर देगा। जैसे प्रोलैक्टिन वैसे ही ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस in algot various uses are cyclic AMP. Remember by the name cyclic AMP, C for carcinoid, A for acromegaly, M for migraine, और 3P form for PPH, Parkinson and hyperprolactinemia. Clear? Some other non-selective serotonergic cycloheptadine बहुत commonly use होती है। cycloheptadine बहुत commonly use किया है, बहुत commonly use होती है, लेकिन उसको कहाँ यूज होती है? To stimulate the appetite. बच्चों में जब भूख नहीं लगती है तो ये साइक्लोहेप्टेडीन बहुत कॉमनली यूज होती है अलग अलग ब्रांड नेम से, लेकिन वो यूज करना क्या जस्टिफाइबल है? नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है। यू विल सी दैट साइक्लोहेप्टेडीन सिर्फ सेरोटोनिन पे नहीं काम करेगी, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है, H1 और M पे भी काम करती है। H1 को ब्लॉक करेगा, H1 इज एंटीहिस्टामिनिक, एंटीहिस्टामिनिक अगर ब्लॉक होगा तो ये हम इसको यूज कर सकते हैं एट्रिकेरिया में भी, बिकॉज ऑफ H1 ब्लॉकर एक्शन। और M रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, M रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो वो एक एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। डोज 4 to 20 मिलीग्राम डिवाइडेड इन 3 to 4 डोज। ठीक है, मिसयूज्ड इन चिल्ड्रन लिखा हुआ है, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, कमिंग स्लाइड, व्हाई आई एम सेइंग दिस मिसयूज्ड इन द चिल्ड्रन। फिल्मांसेरिन एक ड्रग आई थी, FDA अप्रूव्ड ड्रग है, और इट्स आल्सो कॉल्ड फीमेल वायग्रा। मेल वायग्रा का नाम सुना था, फीमेल वायग्रा भी है फिल्मांसेरिन, बट इसके अभी भी डिसाइड किया जा रहा है वेदर इट शुड रिमेन अप्रूव्ड और नॉट। हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इसको अप्रूव किया गया था इन द पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन,
बहुत टाइम नहीं हुआ है, रिसेंटली अप्रूव हुई थी 5-HT1 एगोनिस्ट एंड 5-HT2 एंटागोनिस्ट। इसका ये मैकेनिज्म है, 1A का एगोनिस्ट है और 2A का एंटागोनिस्ट है फिल्गानसिलिन। एक और ड्रग अप्रूव हुई है लॉर्कासिलिन। सेरोटोनिन में हम बात कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन कौन सी है, फिल्गानसिलिन और लॉर्कासिलिन। लॉर्कासिलिन तो फिल्गानसिलिन बहुत कॉमनली यूज नहीं होती है, नहीं क्योंकि कुछ इसके अभी ड्रॉबैक्स देखे जा रहे हैं। लॉर्कासिलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक देखा गया, ये भी बहुत कॉमनली नहीं यूज कर पा रहे हैं। ये भी अभी रिसेंटली अप्रूव हुई थी फॉर द ओबेसिटी 5-HT2C एगोनिस्ट। Again, this lorcaserin is causing various type of cancers. Various type of cancers have been reported in some of the studies that have been published. So lorcaserin, so that is planning to be withdrawn in the future. So lorcaserin, but till now it is approved for the obesity, and filgancilin approved for the hypoactive sexual disorder in the postmenopausal women. Why I was saying the cyproheptadine was a misguided or misused cyproheptadine. Why I was saying cyproheptadine very commonly यूज किया जाता था एपेटाइट को बढ़ाने में, लेकिन होता क्या था, एपेटाइट तो डेफिनेटली बढ़ती है इससे, साइप्रोहेप्टाडीन से एपेटाइट बहुत अच्छी बढ़ती है, वेरी कॉमनली यूज इन चिल्ड्रन। लेकिन क्या होता था कि अगर जो कॉज है, अगर इन्फेक्शन है या कोई और कॉज है जिसके कारण भूख नहीं लग रही है, वो अनट्रीटेड रह जाता था, that remains untreated because of this practice of giving cyproheptadine in every children who is जिसको भूख कम लग रही है। एक और रीजन था, अगर साइप्रोहेप्टाडीन क्या है, साइप्रोहेप्टाडीन ये सेरोटोनिन को ब्लॉक कर रहा था, तो CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट भी होता है इसका, लर्निंग इन द चिल्ड्रन ये भी इम्पेयर होती है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये वेरी कॉमनली मिसयूज्ड ड्रग है for to stimulate the appetite in children. That was the thing with the serotonin. Next video we will see about the migraine. So thank you for the